لکھیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر جو ہے ہمارا 7 ہے. پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سارا ان کا ٹچ اپ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اپنی صفاتیں پڑھیں گے، اور یہ بھی صفات کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ آواز کے چلنے یا رک جانے کے لحاظ سے حروف کی تقسیم. ٹھیک ہے. پیج نمبر 7 دیکھیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے نرم حروف. نرم حروف کنہیں کہتے ہیں؟ یعنی جن کی آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب کس میں آواز جاری رہتی ہے؟ یہ جو یہاں پر انہوں نے مجموعہ لکھ دیا ہے، یہ مجموعہ اگر جیسے ہم نے قطب الجدن یاد رکھا ہوا تھا، ایسے ہی اگر ہم ان کے مجموعے یاد رکھ لیں گے تو ہمیں بہت آسانی رہے گی صفات پر کام کرنے میں. ٹھیک ہے. فحثہ شخص سین غازیو، ان کو ایسے بولا جاتا ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نرم حروف ہے جن پر آواز جو ہے نا وہ ہماری جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا مطلب یہ ہے. اور نیچے آپ لکھیں گے جو ہے نا فحثہ شخص سین، تو اس کا اس کے آگے آپ لکھیں گے کہ اس میں جو ہے سانس بھی چلے گی. اس میں سانس نہیں چلتی ہے، لیکن جب یہ والے جو ہم ورڈز پڑھ رہے ہوتے ہیں فحثہ شخص سین، ان کو ادا کرتے وقت ہماری سانس بھی جو ہے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی آپ سائڈ میں بریکٹ میں کر کے لکھ لیں کہ ہماری سانس بھی جو ہے چل رہی ہوگی جب ہم ان کو ادا کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے اف ہم بول رہے ہوتے ہیں، اف اف میں کیا ہو رہا ہے؟ اف میں اب میری آواز جو ہے وہ بھی جاری ہے. اف اف اش آواز رکی نہیں ہے، جاری ہے. دوسرا میری سانس بھی چل رہی ہے. غازیوں میں کیا ہے؟ اغا، لیکن میری آواز تو جاری ہے لیکن میری سانس نہیں چل رہی ہے. ازا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سانس نہیں چل رہی ہے میری. تو یہ چیز آپ واضح رکھیں گے. فحثہ شخص سین ایسے لیٹرز ہیں جس میں آواز بھی جاری رہتی ہے اور سانس بھی جاری رہتی ہے. فحثہ شخص سین غازیو ایسے لیٹر ہیں جن کی نرم حروف ہے اور ان میں آواز جو ہے جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے درمیانی حروف، یعنی جن کی آواز نہ تو مکمل طور پر جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر بند ہوتی ہے. البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آواز کچھ جاری رہنے کی طرف مائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آواز اس میں جاری رہتی ہے، نہ ہی اس میں مکمل طور پر بند رہتی ہے. یعنی آواز چلتی نہیں ہے لیکن چلنے کی طرف مائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یوں کہیں گے ہم، لکھ لیں چاہیں اس کو بریکٹ میں کہ آواز چلتی نہیں ہے لیکن چلنے کی طرف مائل ہوتی ہے. اس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ال میں کیا ہے؟ آواز چل نہیں رہی ہے، آواز جاری نہیں ہے لیکن پھر بھی ساؤنڈ آ رہی ہے، ایک دم سے رک نہیں گئی ہے. ال یہ آواز آ رہی ہے نا، تو چلنے کی طرف مائل رہتی ہے. ان ام ار. تو یہ لن عمر، ان کے مجموعوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لن عمر. لن عمر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آواز جو ہے چل نہیں رہی ہے لیکن چلنے کی طرف مائل ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے سخت حروف کی. ٹھیک ہے. یہاں ہم کون سی کیٹیگری دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم ان لیٹرز کی کیٹیگری دیکھ رہے ہیں جو آواز کے چلنے یا رک جانے کی طرف جو ہے لحاظ سے حروف کی تقسیم جو ہے یہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سخت میں کیا ہوتا ہے؟ سخت حروف جو ہیں، سخت حروف ہے یعنی جن میں آواز بند ہو جاتی ہے. تک قطب جدن آ، یا ان کے مجموعوں کو بولا جاتا ہے، یعنی جو آپ یہاں لکھ لیں الف اور تا اور الف اور کا، اس میں ہے کہ ہلکا سا سانس جو ہے جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہلکا سا سانس جاری رہتا ہے. یہاں پر اس میں لکھ لیں، اس میں نہیں رہتا ہے لیکن اس میں جو ہے ہلکا سا سانس جاری رہتا ہے. جیسے اس میں فحثہ شخص سین میں آواز جاری رہتا ہے، ایسے ہی تا اور کاف میں بھی آواز جاری رہتا ہے. اس لیے فحثہ شخص سکت بولتے ہیں اس والے مجموعے کو اور اس والے مجموعے کو. میں کچھ یہاں لکھ نہیں سکتی ہوں، یہاں پر لکھا نہیں جا رہا ہے، نہیں تو میں یہاں لکھ دیتی فحثہ شخص سین. ایک منٹ میں اس کو کراس کر، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فحثہ شخص، اور سین کے ساتھ جب ہم تا اور کاف
ایڈ کر دیں گے تو یہ والی جو کوالٹی بن جائے گی پورے مجموعے کی، اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ اس میں آواز جو ہے جاری رہتی ہے، سانس جو ہے جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس مجموعے کو. باقی فحسہ شخص سین غازیو جو ہے جن میں آواز جاری رہتی ہے، اور یہ والا جو ہے قطب جدن آ اور یہ تاکہ جو ہے ان میں جو ہے آواز جو ہے بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے تو یہ یاد رہے گی آپ لوگوں کو. اب آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرے، بشرا رحمانی آپ مائک آن کریں، میں نے جو ابھی پڑھایا اس کو ریپیٹ کریں. آواز کے چلنے یا رک جانے کے لحاظ سے حروف کو 3 قسم میں بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا: نرم حروف، درمیانی حروف اور سخت حروف. نرم حروف یعنی جن کی آواز جاری رہتی ہے، اس کو پھر فردر 2 کیٹیگریز میں کیا گیا ہے: فحسن، سکسن، سین. اس میں آواز جاری رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سانس بھی چلتی رہتی ہے: اف، اہ، اس، اش، غازیو. اس میں آواز جاری رہتی ہے لیکن سانس نہیں چلتی ہے: اغ، از، اس، از. درمیانی حروف یعنی جن کی آواز نہ تو مکمل طور پہ جاری رہتی ہے نہ ہی مکمل طور پہ بند ہوتی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آواز جاری رہنے کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی چلتی نہیں ہے لیکن ساؤنڈ اس میں سے آتی ہے، مطلب مائل رہتی ہے اس کی طرف. اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے لن، ام، ال، ان، ام، ار. سخت حروف یعنی جن کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کو بھی فردر 2 کیٹیگریز میں کیا گیا ہے: تک اور کتب و جدن ا. تک میں ہلکا سا سانس جاری رہتا ہے، یعنی اگر سکشن سین کے ساتھ اگر ہم تک ملا دیں گے، تا اور کاف ملا دیں گے، تو اس میں وہ چیز ہے کہ اس میں آواز کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے. تک کا ات سے اکت. اور کتب جدن جو ہے جس میں ہم قلقلہ کرتے ہیں، اس میں اگر حمزہ ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا جس کی آواز بند ہو جاتی ہے: اق، ات، اب، اج، اد، ا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ فحسہ شخص سکت، یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں انہی میں صرف یہ ایسے حروف ہیں کہ جن میں آواز جو ہے ہماری جاری رہتی ہے، صرف انہی حروف میں فحسہ شخص سکت میں آواز جو ہے، سانس جو ہے وہ ہماری جاری رہتی ہے. باقی آواز جاری رکھنے والے حروف فحسہ شخص سین غازیو ہیں، اور جن میں آواز مائل رہتی ہے لیکن پوری جاری نہیں ہوتی وہ لین عمر ہے، اور جن میں آواز ہماری رک جاتی ہے یعنی آواز بند ہو جاتی ہے وہ ہے تاکا، قطب جدن آ. ٹھیک ہے، یہ مجموعہ جو ہے نا آپ لوگ ایسے ریپیٹڈ کریں گے انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خیر النساء مائک آن کریں اور صرف مجموعہ کو پروناؤنس کریں. مجموعہ مطلب کیا جو لکھا ہوا حروف ہے ان کو؟ ہاں جی، ایسے ہی کہ فحسہ شخص سین غازیو، اس میں آواز جاری رہتی ہے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب یہ نرم حروف یعنی فحشہ شخص سین، غازیو، آواز جاری ہے. ہاں، فحشہ شخص سین یعنی اس میں آواز جاری ہے اور سانس چل رہی ہوں گی، جیسا اف، آہ، اس، اش، اخ، اس، آہ، اس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی ٹھیک ہے، طرح سے ہاں صرف دوسرا بھی پڑھو مجموعہ نا. پڑھیں، صرف مجموعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، ہاں جیسا غازیوں کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اتنا ہی پڑھ دوں گا. ہاں جی، جیسے مثلاً ایسے بتانا ہے، چلے مائک میوٹ کر لیں. اچھا ایسے بتانا ہے کہ نرم حروف ہمارے یعنی وہ لیٹرز جن میں آواز ہماری جاری رہتی ہے انہیں کہتے ہیں فحسہ شخص سین غازیو، جن میں آواز جاری رہتی ہے. آپ مائک میوٹ کر لیں. اور وہ لیٹر جن میں آواز مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوتی لیکن آواز جو ہے مائل رہتی ہے تو انہیں کہتے ہیں ہم لن عمر. اور جن میں آواز بند ہو جاتی ہے وہ ہے تاکا، قطب جدن آ. ٹھیک ہے، اور ایسے الفاظ جن میں سانس بھی جاری رہتی ہے وہ صرف الفاظ وہ یہ ہیں فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں آواز جو ہے، سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. آج ہم جو پڑھیں گے یہ حروفوں کی صفات ہے، یہ آپ لوگ پیج پڑھ لیں گے، اور میں گمان کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے پیج پڑھ بھی لیے ہوں. ٹھیک ہے، پڑھنے چاہیے جب ہم کلاس میں آئیں.
तो हमें जो है पीछे का पढ़ के आया करें थोड़ा सारा, इतना टाइम नहीं होता है ना, मैं एक एक पेज लाइन बताऊंगी आपको पढ़ के, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे लाजमी मुतजाद सिफात, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिफात जो है 3 तरह की होती है, लाजमी मुतजाद सिफात, लाजमी गैर मुतजाद सिफात और आर्जी सिफात, ठीक है। लाजमी मुतजाद सिफात कौन सी होती है? ये 10 लाजमी सिफात होती हैं जो 5 जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं और हर जोड़ों में से एक सिफत एक हर्फ में लाजमी तौर पर पाई जाती है। यानी हर लेटर के पास 5 सिफात जो हैं वो कंपलसरी होती हैं, यानी हर एक हरूफ में सिफात लाजमी होती हैं। मसलन मोटे या बारीक सिफत के जोड़े में से सौद और तौ में मोटी सिफत, जबकि सीन और ता में बारीक सिफत पाई जाती है, ठीक है। तो इनका मजमुआ है, ये अपोजिट में होते हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन हम जो है पेज नंबर पहले 11 पे आ जाएंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, बात को फिर हम इस एक्टिविटी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 11 पे आ जाए, हुरूफ के 10 लाजमी मुतजाद सिफात, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा कि 10 लाजमी मुतजाद सिफात ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए 10 हो गए, वैसे ये 5 दिख रहा है, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि जबान की जड़ से बुलंद होना, ठीक है। नतीजतन मोटी अदायगी, गुस्सा ज़ौक़िन क़िज़, ये सिफत जो है इनमें पाई जाती है। और या जबान की जड़ से नीचे रहना, नतीजतन बारीक अदायगी। इनके अलावा जितने भी लेटर हैं उनमें ये सिफत पाई जाती है। जैसा कि हम पिछले अब्वाब में पढ़ चुके हैं कि हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले 7 हरूफ गुस्सा ज़ौक़िन क़िज़ की अदायगी में जबान पीछे से यानी जड़ से ऊपर को उठ जाती है, जिसकी वजह से उन हरूफ की आवाजें मोटी हो जाती हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं। और ये इनकी कौन सी सिफात है? ये लाजमी सिफात है, इनके मोटा होना। जबकि इन हरूफों के अलावा बकिया जितने भी हरूफ हैं, ठीक है, यानी गुस्सा ज़ौक़िन क़िज़, ये जो लेटर्स हैं इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं इनकी अदायगी में जबान पीछे से यानी जड़ से नीचे रहती है, यानी जब पीछे की जड़ जो है वो बुलंद नहीं होती है जबान की, जिसकी वजह से इन सब के हरूफ की आवाजें बारीक रहती हैं, ठीक है। ये आ गई इनकी डिटेल आ गई, ठीक है। हमने इन पर ही काम करना है। नंबर 2 क्या है? जबान के दरमियानी हिस्से का ताल्लुक को ढांप लेना, ठीक है। नतीजतन भरी हुई आवाज। अब भरी हुई आवाज जो है तो सौद दो ज़ौद, ये हमने पिछले वीक ही पढ़ा था इनको कि इनमें से लेटर है, लेकिन कुछ 4 लेटर ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा हैवी करके पढ़ा जाता है, और वो है तोज़ा और सौज़ा, ठीक है। और इसके बरक्स क्या है? जबान के दरमियानी हिस्से के नीचे रहना, नतीजतन आवाज का खुल कर निकलना। बकिया तमाम हरूफ, यानी इन लेटर्स के अलावा, इन 4 लेटर्स के अलावा जितने भी हरूफ हैं उनमें क्या है? ये सिफत पाई जाती है, यानी उनकी आवाज जो है खुलकर निकलती है, ठीक है। इस तरह हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इन 7 मोटे हरूफ तो सौद ज़ौद ज़ौ क़ाफ ग़ैन ख़ा में से 4 हरूफ तो सौद ज़ौद ग़ौ की अदायगी में जबान पीछे से यानी जड़ से बुलंद होने के साथ साथ दरमियानी हिस्से से भी बुलंद होकर तालु को ढांप लेती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ये 4 लेटर जो है बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए इन हरूफ की मोटी आवाजें खूब भरे मुंह से निकलती हैं, ठीक है। जबकि इन 4 हरूफ के अलावा बकिया जितने भी हरूफ हैं उनकी अदायगी में जबान दरमियानी से तालु से नीचे रहती है, इसलिए बकिया तमाम हरूफ की आवाजें खूब खुलकर निकलती हैं, ठीक है। यानी ये जो हो गए इतने ज्यादा हेवी हो गए लेटर तो और सौद ज़ौद ज़ौ, ये वाले जो लेटर हो गए इतने ज्यादा हेवी हो गए हैं। एक सिफत इनमें जो ये सिफात है ये लाजमी है, और इसके अलावा जो खुल के जो आवाज निकलती है वो तमाम लेटर्स में सिफत पाई जाती है, ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट क्या है? नरम हरूफ की अदायगी में आवाज का जारी रहना। जैसे कि हमने अभी पढ़ा पीछे, फहस्सहु शख्सुन सीन, गाजियों में क्या होता है? आवाज जारी रहती है। सख्त हरूफ की आवाज अदायगी में आवाज का रुक जाना, जैसे अजिदु का कतबता, और आवाज की बुलंदी और जारी के दरमियानी कैफियत में होना, यानी लिन उमर, इनमें हम पढ़ चुके हैं। और इनका क्या है? इस तरह ये भी पढ़ चुके हैं कि 8 हरूफ, ठीक है, यानी इसको हम कह लें ताका कुतुबुज्जद्दीन की अदायगी में सख्ती पाई जाती है, जिसकी वजह से इन हरूफ की आवाजें अपने ऊपर मखरजों में रुक जाती है, ठीक है। ये रुकती हैं कि नहीं रुकती? जब हम कलकला पढ़ते हैं तो लगता है ना आवाज स्टॉप हुई है। जबकि इन हरूफ फहस्सहु शख्सुन सीन गाजियो
की अदायगी में नरमी पाई जाती है, जिसकी वजह से इन हरूफ की आवाजें अपने अपने मखरजों से जारी रहती हैं। ठीक है, आवाजें इनकी अपने अपने मखरजों से निकलती रहती है, रुकती नहीं है, जैसे कि कुतुब जद्दीन आ ताका में रुकती हैं। और इन 5 हरूफ लिन उमर की अदायगी में आवाजें अपने अपने मखरजों में ना तो मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं, एज लाइक कुतुब जद्दीन आ ताका की तरह, और ना ही मुकम्मल तौर पर जारी रहती हैं। ठीक है, फासाउ शख्सन सिन गाजियों की तरह। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ये पांचों हरूफ सख्त हरूफ की निस्बत नरम हरूफ से करीब तर हैं, यानी इनकी आवाजें टूटती नहीं मगर चलती भी नहीं है। ठीक है, यानी आवाज निकलने की तरफ माइल है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। नंबर चौथा है दौरान अदायगी सांस का जारी रहना। ये कि हमने पढ़ लिया है फहस्साहु शख्सुन, सकत में जो है आवाज जारी रहती है। यहाँ पर लिखा भी यानी उन हरूफ की अदा करते वक्त आवाजें अपने अपने मखरजों से ऐसी कमजोरी और पस्ती के साथ जाहिर होती हैं कि दौरान सांस जारी रहती है, जिसकी वजह से आवाज में पस्ती भी पाई जाती है। ठीक है, आपने जहन में रखना है जब हम ये लेटर्स पढ़ते हैं तो आवाज में पस्ती पाई जाती है, बुलंदी नहीं पाई जाती। ठीक है, इस चीज को भी हमने, इस पॉइंट को भी इरेज रखना है कि ये जो हम लेटर्स पढ़ रहे हैं जिसमें आवाजें पस्ती पाई जाती है, यानी आवाज जो इसमें एक तरीके से स्लो होगी। ठीक है, और बाकी जब हम लेटर्स पढ़ रहे हैं आगे दौरान अदायगी सांस का रुक जाना, बकिया तमाम हरूफ नहीं, ये वाला है आवाज के अपने मखरज के साथ मजबूती और जमाव के साथ निकलना। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, यही है। हाँ, बकिया तमाम हरूफ की अदायगी के वक्त आवाजें अपने अपने मखरजों से कुछ ऐसी कुव्वत के साथ जाहिर होती हैं कि सांस रुक सा जाता है, यानी सांस का ज्यादा हिस्सा आवाज में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से आवाजें में बुलंदी पाई जाती है। यानी ये वाले जो लेटर्स आ जाते हैं आपके कुतुबुज्जद्दीन, तो इसमें क्या होता है, इसमें आवाज जो है आपकी बुलंद हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि हमारा जो नरम हरूफ था उसमें हमारी आवाज जो है पस्त हुई जा रही थी, जैसे कि इसमें इन्होंने हमें बताया कि फहस्साहु शख्सुन, सकत के जो हरूफ हैं इनमें सांस भी जारी रहती है और आवाज पस्ती भी हो जाती है, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स आ जाते हैं उसमें क्या होता है, सांस रुक भी जाती है और आवाज जो है हमारी बुलंद भी हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि लहजे को जब पढ़ते हैं हम, लहजा हम बना रहे होते हैं और हम जब किसी कुर्रा हजरात की जो हम तिलावत सुन रहे होते हैं तो उतार चढ़ाव होता है आवाज के अंदर। तो वो क्यों होता है, उसका आंसर ही सिफात के अंदर है। ये वाले जो लेटर्स हैं ये हमने याद रखने हैं। फहस्सहु शख्सुन सकत, ये ऐसे लेटर्स हैं जिनमें सांस भी जारी रहती है और आवाज में भी पस्ती पाई जाती है। ठीक है, और इनके बरक्स जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें आवाज, उसमें सांस रुक जाती है और आवाज में बुलंदी पाई जाती है। ठीक है, तब्दील हो जाना जिसकी वजह से आवाजें बुलंदी पाई जाती है। अब यह है नंबर 5, आवाजों का आवाज का अपने मखरज से फिसलते हुए निकलते जाना। यह है फुर्रा मिन लुब्बिन। ये ऐसे लेटर्स का मजमुआ है जिसमें आवाज फिसलते हुए यानी विदाउट एफर्ट निकल रही होती है। जैसे मैं कहूँ उफ, फा जो है आराम से निकल रहा है, अरे रॉ आराम से निकल रही है। ठीक है, अल्लाह लाम, यानी ये जो लेटर्स जो हैं ये वाले फुर्रा मिन लुब के जो लेटर्स हैं ये फिसलते हुए निकल रहे होते हैं। इसी तरह पिछले अवाम में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हुरूफों की अदायगी खूब मजबूती और जमाव से करनी चाहिए, यानी हुरूफों को उनके मखरज से मजबूती और जमाव से ही अदा किया जाता है। अलबत्ता ये 6 हुरूफ फुर्रा मिन लुब होठों और जबानी किनारों से बासहूलत अदा होते हैं, गोया कि इन हुरूफों को आवाजें अपने अपने मखरज से फिसलते हुए निकलती चली जाती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा जमाव के साथ पढ़ना है, लेकिन फिर भी तमाम लेटर्स को कहीं कम कहीं ज्यादा जमाव के साथ पढ़ना ही होता है। फिर दूसरा, आवाज का अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ निकलना। बकिया तमाम हुरूफ, इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो अपने मखरज के साथ मजबूती और जमाव के साथ निकलेंगे। ठीक है, जबकि बकिया तमाम हरूफ को उनके मखरज से मजबूती और जमाव के साथ निकाला जाएगा, क्योंकि फुर्रा मिन लुब ऐसा है कि मजबूती तो बहरहाल इनमें भी होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिसलते हुए बहुत इजीली निकल जाते हैं। ये इनकी खासियत है कि फिसलते हुए निकलते हैं। बाकी जो लेटर्स हैं उनको जरा जमाव के साथ पढ़ना पड़ता है। अगर आप जमाव नहीं लाएंगे तो वो ढीला ढीलापन कहा जाता है ना, कि ढीली सी क़िराअत लग रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उनके मखरज को प्रॉपर नहीं अदा कर रहे हैं, तो इस वजह से ढीली ढीली क़िराअत लग रही होती है। ठीक है, तो अब हम पेज जो है पेज पीछे आ जाते हैं। अब मुझे आप में से कोई माइक ऑन करके बताए कि ये उसको ये सारे पॉइंट जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गए।
हाँ जी, कोई माइक ऑन करिए, बताएं मुझे। जी, बहुत अच्छे से वाज़ेह नहीं हुई मैम, क्योंकि ये कुछ कुछ वर्ड तो बिल्कुल पहली बार सुना है सिफात में, लेकिन हाँ इंशाल्लाह कोशिश करके समझ जाऊंगी और फिर से पढ़ के इसको। और जैसे ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था फहसुन सकसुन सकत, और तो, लेकिन मैं समझ गई हूँ, मुझे अपना पता है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ के इंशाल्लाह 2-3 बार रिवीजन करूंगी तो फिर मेरा क्लियर हो जाएगा। मतलब वो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो मजमूआ है वो मुझे याद हो जाएंगे। जैसे पहले हाँ मैं जी, बहुत कम जानती थी, हाँ कुछ जी, जफ्तिन से जानती थी और कुतुबन जद्दिन जानती थी। ये 2-3 वर्ड सिफात में फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हुई है कि मैं फिर पढ़ूंगी हाँ तो जी। मैं समझ जाऊंगी। ये जो लेटर्स का मजमूआ है ना, ये इंशाल्लाह हम जब रिपीटेडली क्लास में, यूं ही मैंने कहा कि हम जो सिफात का टॉपिक है ये हम थोड़ा लेंथी करके पढ़ेंगे, यानी कुछ हफ्तों तक चलाएंगे, ताकि जो ये मजमूआ है ना हमें सुन सुन के याद हो जाए। ठीक है, जी ये पढ़ाने का मकसद यही है। चलें ठीक है, ये थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। अब ये एक्टिविटी आप थोड़ा समझ लें, इसके बाद जो है आप लोग पेंसिल भी रख लें अपने साथ। जैसे सीन, मसलन सीन ये स्टार बना हुआ है और स्टार के हर किनारे पे आप देख रहे हैं ये जो 5 लाजमी जो सिफात होती हैं, यानी ये 10 लाजमी सिफात ये लिखी हुई हैं। इनमें से हर लेटर की 5 सिफात हैं। या तो हुर्फ मोटा होगा या बारीक होगा, या तो हुरूफ भरी हुई आवाज से पढ़ी जाएगा या खुली हुई आवाज से पढ़ा जाएगा, या तो हरफ जो है आवाज का जारी रखेगा या आवाज का रुक जाएगा, या आवाज ना तो रुकेगी ना ही जारी रहेगी, लिन उमर में से है। ठीक है, या फिर सांस जारी रहेगी, सांस रुक जाएगी, या फिसलती हुई आवाज वाले लेटर होगा, या फिर जमाव वाली आवाज वाला लेटर होगा। जैसे कि हमने पढ़ा भरी हुई आवाज वाले लेटर सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं, तो, स्वाद, ज़ो, ठीक है। और इनके अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो खुली हुई आवाज में से पढ़े जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोटे लेटर्स जैसे कि हम जानते हैं और पहले दिन से हम जानते हैं, और इनका मजमुआ भी हमें याद है, गुस्सा, ज़ौक़्तिन, क़िस, ये जो है मोटी आवाज वाले लेटर्स हैं। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो बारीक होते हैं। हमें अभी तक नहीं पता था कि ये सिफत है, और आज हमें पता चला है कि ये इनकी सिफत है, यानी इनकी एक क्वालिटी है। जैसे एक इंसान की होती है ना कि ये इंसान बहुत खर्च करने वाला है, ये इंसान बहुत मजाकिया है, या ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, या ये इंसान बहुत सीरियस रहता है। एक कोई ना कोई सिफत इंसान के अंदर होती है जिससे वो मशहूर होता है अपने टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ही इन लेटर्स की ये सिफत है, लेकिन इन लेटर्स में 5 सिफत जो है कंपलसरी मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, अब फिर अगर हम इसको देखें कि आवाज जारी रहने वाले, जो हमने अभी पढ़ा कि फहस्सा शख्सन गाजियो जो है, इनमें आवाज जारी रहती है। और अजीदु का वैसे तो हमने ये वाला देखा है अभी, ताका और कुतुबुज्जद्दीन इसमें क्या होता है, आवाज जो है रुक जाती है। नंबर 3 हमने देखा था कि लिन उमर में क्या होता है, लिन उमर में ना तो आवाज रुकती है और आवाज की तरफ माइल होते हैं ये लेटर्स। फिर हमने पढ़ा फहस्सा शख्सन सकत जो है, इसमें सांस जो है जारी रहती है, और इनके तमाम वाले लेटर्स जो इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उसमें सांस जो है रुक जाती है। ठीक है, यानी सांस नहीं कंटिन्यू रहती है, पढ़ते टाइम सांस नहीं होती है उनके अंदर। फिर हमने पढ़ा कि जमाव वाले हुरूफ तमाम लेटर्स को जमाव के साथ पढ़ते हैं, लेकिन फुर्रा मिन लुब ऐसे लेटर्स हैं जिनको फिसलते हुए पढ़े जाते हैं। ठीक है, इनमें इतना ज्यादा जमाव नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो है नाइला, आप माइक ऑन करें, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नाइला, वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए मैंने यहाँ सीन रखा हुआ है। जी अब आपने एक एक स्टार पे जाना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जी सिफत सीन के अंदर है। क्या ये मोटे हरूफ में से है, बारीक हरूफ में से है? सॉरी मेरे पास प्रिंट नहीं है इसका। आपको स्क्रीन थोड़ी शेयर हो रही है? बिजी थी तो नहीं, मुझे नहीं शेयर। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? और किसी को शेयर हो रही है स्क्रीन? जी आप ही हो रही है। मैम मुझे भी नहीं हो रही है। अच्छा, जो नहीं हो रही है कह रहा है दूसरा बंदा, तो उनके पास नोट्स नहीं है? आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है और नोट्स भी हैं पास। ठीक है क़िरात, आपका माइक ऑन है तो आप बताएं। आप बताएं क़िरात की सीन में सीन मोटा लेटर है या बारीक है? आप ही बारीक लेटर है। ठीक है, सीन नंबर 2 भरी हुई आवाज से निकलता है या खुली हुई आवाज से निकलता है? भरी हुई आवाज से भी और खुली हुई आवाज वाले हरूफ भी हैं क्यों इसमें। भरी हुई आवाज से? तो हमने ये पढ़ा था कि तो, स्वाद, ज़्वा, ज़्वा ये पढ़े जाते हैं। भरी हुई आवाज से तो सिर्फ 4 लेटर्स पढ़े जाते हैं। जी फिर सीन कैसे पढ़ेंगे हम भरी हुई आवाज से? अच्छा, सीन सीन का बोल रही है खुली आवाज से आप ही। ठीक है, मैं अच्छा सब ये सीन जी में जो है आवाज जारी रहती है?
जी। आवाज रुक जाती है आवाज रुकती नहीं है, जारी रहती है। और आवाज फिर आवाज की तरफ माइल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किस में से है, फहसाउ शख्सुन सीन गाजियों में से है, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि आवाज जो है जारी रहती है। अच्छा, सीन के अंदर जो है सांस जारी रहती है या सांस रुक जाती है? सांस रुक जाती है अभी सीन के अंदर जी। हमने एक ऐसा मजमुआ पढ़ा था, फहस्सहु शख्सुन सकत, जिसके अंदर सांस क्या जी। होती है, जारी रहती है, जारी रहती है। ठीक है। क्या मजमुआ है वो? फहस्सहु शख्सुन सकत। इन लेटर्स में क्या पाया जाता है, क्या रहता है इनमें? सांस जारी रहती है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, फिर सीन क्या फिसलती हुई आवाज से निकलता है या फिर जमाव वाली आवाज से निकलता है? जमाई हुई आवाज से, मतलब सख्ती से अदा होता है सीन। हाँ ठीक है, यानी जमाव के साथ निकलता है, ठीक है। वाली आवाज वाले हरूफ। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम जो है माइक ऑन करते हैं। जी आप माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, आप लिख लें अपने स्टार के ऊपर, तो लिख लें, ठीक है मैम। ठीक है। अब तो जी, जी। बताएं, तो किन में से है, मोटी आवाज वाला हरूफ है या फिर बारीक आवाज वाला हरूफ है? मैम मोटी आवाज वाला है। गुड, नंबर 1 सिफात हमें मिल गई कि वो मोटी आवाज वाला है। अच्छा, भरी हुई आवाज वाला है या खुली हुई आवाज वाला है? मैम भरी हुई आवाज वाला है। माशाल्लाह, गुड। नंबर 2 हमें सिफत मिल गई कि वो भरी हुई आवाज वाला है। नंबर 3, उसमें आवाज जारी रहती है या आवाज रुक जाती है या फिर आवाज की तरफ माइल होता है? आवाज की तरफ माइल होता है मैम। तो याद करें हमने क्या पढ़ा था, ता का कुतुब जद्दिन आ, इसमें क्या था, आवाज रुक जाती है। तो किसमें से है, आवाज रुक जाने वाले में से। ठीक हो गया मैम। ठीक है, हो गया। तो नंबर ठीक हो 3 गया। सिफत क्या मिल गई कि इसमें आवाज रुक जाती है। रुक नंबर 4 जाती है। सिफत बताएं कि सांस जारी रहती है इसमें या फिर सांस रुक जाती है, तो के अंदर तो के अंदर मैम रुक जाती है। रुक जाती है, वेरी गुड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि फहस्सहुन शख्सुन सीन सकत जो है, ये सिर्फ ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर सांस जो है जारी रहती है। अच्छा, फिर बताएं कि फिसलती हुई आवाज वाला लेटर है या फिर जमाव वाली आवाज वाला लेटर है? मैम जमाओ वाला है ना, क्योंकि हम पूरे जोर से बोलते हैं मुंह को भर के। हाँ, क्योंकि तो फुर्रा मिन लुब्बिन में ही यह सिफत पाई जाती है कि वो फिसलती हुई आवाज में से निकलते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। बुशरा बानो, आप माइक ऑन करें, बस थोड़ा सारा हमारे पास टाइम रह गया, इसलिए हम क्विक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम रखेंगे फा, ठीक है। अब फा लिख लें आप अपने स्टार के अंदर। ओके, अब आप बताएं नंबर 1 सिफत, फा मोटा लेटर है या बारीक? बारीक। ठीक है, क्योंकि मोटा लेटर सिर्फ खुस्सा ज़ब्तिन क़िज़ ही है। अच्छा, फा भरी हुई आवाज से पढ़ा जाता है या खुली हुई आवाज से? इतना सोचना, भरी हुई आवाज से तो सिर्फ 4 लेटर पढ़े जाते हैं। नहीं, खुली आवाज से। हाँ, भरी हुई आवाज से सिर्फ 4 लेटर पढ़े जाते हैं, तो सौद ज़ोर वाद, ठीक है। अच्छा, फा जो है आवाज जारी रखने वाला लेटर है या आवाज रुक जाती है इसके अंदर या आवाज की तरफ माइल होता है? आवाज मक्का में आवाज मतलब जारी रहती है। गुड, माशाल्लाह। फहस्सहु शख्सुन सीन गाजियों में हमने पढ़ा था कि आवाज जो है जारी रहती है, नरम लेटर है, ठीक है। नंबर 4 है, फा के अंदर सांस जारी रहती है या सांस रुक जाती है? सांस जारी रहती है। माशाल्लाह, वेरी गुड। क्योंकि हमने फहस्सहु शख्सुन सकत में हमने पढ़ा था कि सांस जो है जारी रहती है और फा जो है उसमें मौजूद है। फिर इसमें फिसलती हुई आवाज निकलती है या जमाव वाली आवाज से पढ़ा जाता है? फिसलती हुई आवाज। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा फर्रा मिन लुब्बिन जो है, ये ऐसे लेटर है जिसमें फिसलती हुई आवाज निकलती है, ठीक है। बाकी ये सबने याद रखना है कि हर लेटर को मजबूती के साथ, यानी किसी में बकदर, जैसे फर्रा मिन लुब्बिन है, इनको भी हम थोड़े जमाव के साथ पढ़ेंगे। हर लेटर को जो है किसी को भी ढीले अंदाज में नहीं पढ़ना है, कहने का मकसद ये, कोई भी ढीले से नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब जो है आप माइक म्यूट कर लें, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, एक मिनट जी, खुर्शीद आपको आवाज आ रही है?
जी खुर्शीद साहिबा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके, अब हम रखेंगे स्टार में लिख लिए अपने लाम, हाँ, ठीक है। अब बताएं लाम मुझे, जो है लाम बारीक बारीक है, बारीक आवाज में है। माशाल्लाह, हाँ, वेरी गुड। नंबर 2, लाम की क्या सिफत है? भरी हुई आवाज वाला है, खुली हुई आवाज वाला है? खुली खुली हुई आवाज में है, वेरी गुड, खुली माशाल्लाह, हुई आवाज। ठीक है। नंबर 3, उसमें क्या रहता है? आवाज जारी रहती है, आवाज रुक जाती है, या फिर आवाज की तरफ माइल होता है? आवाज की तरफ, आवाज का न रुकना न जारी रहना, हाँ, ना रुकना ना आवाज की जारी तरफ रहना, माइल यानी होना। लिन उमर में से है ये हाँ, हमारा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था हाँ, फहसाउ शख्सुन सीन गाजियो जो है जिसमें आवाज जारी रहती है, और ताका जी, कुतुबुज्जद्दीन आ इसमें आवाज रुक जाती है, और लिन उमर जो है दरमियानी लेटर था हमारा। हाँ, अच्छा, फिर हम हाँ, बताइए, सांस जारी रहती है, सांस रुक जाती है? सांस का रुक जाना। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा सिर्फ फहसाउ शख्सुन सीन सकत ऐसे ही हाँ, लेटर्स हैं जिनके अंदर सांस जारी रहती है। इतने ही लेटर से। अच्छा जी, बताइए, फिर आवाज फिसलती हुई निकलती है, जमाव के साथ निकलती है? इसमें आवाज फिसलती हुई निकलती है, वेरी गुड, माशाल्लाह, फिसलती हुई क्योंकि आवाज। हमने पढ़ा कि फुर्रा मिन लुब्बिन ऐसे लेटर हैं जिसमें आवाज हाँ, फिसलती हुई निकलती है, ठीक है। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, हाँ, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। हाँ। मैं यही गुमान करूंगी कि आप लोगों इसमें को ये टॉपिक ये पेज हमारे पास नहीं है मैडम। आप ये वेरी जो गुड, पेज मुबारक सीन हो। के स्टार वाला पेज है वो नहीं है हमारे पास। आपने प्रिंट नहीं करवाया? सब प्रिंट हो गए हैं, ये एक पेज बच गया है, कैसे मालूम। कोई बात नहीं, इस स्टार ठीक से है, मैं पहले भी करवा एक लूंगा। और लेटर है, एक पेज और है, ये वाला पेज है। पेज नंबर 9 देखें। हाँ वो भी नहीं है, 9, 10, 11 आप नहीं फिर है, 2-3 निकलवाएं, पेजेस नहीं है इसमें। ये तो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है, आप इनको निकाल जरूर लेंगे। निकलवाएं, हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह। है, ये सेकंड कॉपी थी, आप इनको निकलवा लीजिएगा। और मैं जी उम्मीद जी करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग घर में इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने अभी की प्रैक्टिस, और इन मजमुओं को बार बार जी ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने अभी क्लास के अंदर पढ़ा, तो ये पढ़ पढ़ के ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल जी रहेगी, एक आध बार कोशिश करिएगा कि बार बार इसको सुन लीजिएगा, ताकि ये मजमुआ जो है ना हमारा, फहसाहु शख्सुन सीन गाजियो, फहसाहु शख्सुन सकत, और ताका कतुब जद्दीन आल लिन उमर और फुर्रा मिन लुब्बिन और खुस्सर ज़ब्तिन क़ैद, ये जो मजमुए हैं, ये कुछ मजमुए हैं, अगर ये हमें याद हो जाएंगे तो सिफत हमसे समझ लें कि 80% सिफत हमसे आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी सिफात थी? ये हमारी लाजिम मुतज़ाद सिफात थी। ये 5 सिफात जो है इसमें पाई जाती है, और हमारा टाइम माशाल्लाह हो चुका है। तो अब जो रहते हैं इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हम यहीं से शुरुआत करेंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास से पहले आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और आगे के पेजेस को भी रीड कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई सवाल होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और नोट्स को जब आप रिवाइज करेंगी अपने, तो कोई सवाल होगा तो बेझिझक आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट जहन के अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट, एक डाउट भी, क्योंकि आप लोग जहन में रखिएगा कि नेक्स्ट मंजिल जो है हमारी, वो हमारे लहजे के ऊपर ही है। ओके जी। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका शुक्रिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।